Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, in the previous session we have discussed about allotropes of carbon and versatile nature of carbon, catenation, tetracovalency and tendency to form multiple bonds. These properties we have discussed. Now today we will start with the next topic, that is the compounds, various types of the compounds. Mainly at the end of the 18th century, the compounds that were present that were categorized into two categories. Okay, one is organic compounds and one is inorganic compounds. What are organic compounds? The compounds that are isolated from directly or indirectly from living organisms such as plants and animals are called organic compounds. And that branch of chemistry that deals with the study of these compounds is called organic chemistry. Okay, and what are inorganic compounds? Those compounds that are isolated from non-living sources such as rocks and minerals. Various examples are there: copper sulfate, ferrous sulfate, ferrous nitrate, potassium nitrate, zinc sulfate. Okay, that are inorganic compounds and that are obtained from rocks and minerals. Okay, inorganic chemistry, the branch of chemistry that deals with the study of these compounds is called inorganic chemistry. ठीक है, सो बेटे इन द अर्लियर स्टेजेस क्या कहा गया कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज्ड दैम. ठीक है, कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ही बनते हैं, उनके अंदर ही ये सिंथेसाइज्ड हो सकते हैं. एंड देयर सम काइंड ऑफ फोर्सेस, ठीक है, कोई उनके अंदर शक्ति है, पावर है जो क्या करती है, इन केमिकल्स को बनाने में हेल्प करती है, इन कंपाउंड्स को बनाती है. एंड दिस बिलीफ वाज गिवन बाय बर्जीलियस. ओके, BERZELIUS, बर्जीलियस. उन्होंने कहा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं तो देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स बिहाइंड इट जो इसको बनाने में हेल्प करती है. एंड दे गेव दिस थ्योरी और वाइटल फोर्स थ्योरी. उन्होंने इस थ्योरी को क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी. और उस फोर्स को क्या नाम दिया जो इसके पीछे काम करती है? दैट इज नोन एज वाइटल फोर्स. ओके, उन्होंने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया दैट वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, लेकिन लेटर ऑन इन 1828 में न्यू केमिस्ट, जर्मन केमिस्ट कौन थे? फ्रेडरिच वोलर, FRIEDRICH, फ्रेडरिच वोलर. ओके, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी वाइटल फोर्स या कोई ऐसी फोर्स जो है वो कोई ऐसी फोर्स काम नहीं करती है. ठीक है, वी कैन सिंथेसाइज देम इन द लैब्स एंड ही सिंथेसाइज्ड यूरिया. ओके, दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज सिंथेसाइज्ड, that is urea, and the formula of urea is NH2C double bond O NH2. Okay, this is urea. He synthesized this urea from ammonium cyanate. कहाँ से बनाया उन्होंने? Ammonium cyanate. Okay, and ammonium cyanate is NH4CNO. ओके, सो उन्होंने अमोनियम साइनेट से क्या बनाया? यूरिया बनाया. एंड इट इज द फर्स्ट आर्टिफिशियल या आप सिंथेसाइज्ड कंपाउंड बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं. ओके, और यूरिया हम पढ़ चुके हैं बेटे, दिस इज एक्सक्रीटरी है ना मटेरियल. ऑर्गेनिक कंपाउंड. अंडरस्टूड? सो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन थी दैट विल चेंज, वो चेंज हो गई. ठीक है, उन्होंने कहा ज़रूरी नहीं है कि लिविंग के आपसे ही लिविंग के उससे ही मिलते हैं. उन्होंने कहा वो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन एंड one and more other elements such as oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, phosphorus, etc. are called organic compounds. ठीक है, उन्होंने कहा कि आप इसको क्या कह सकते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड. और
In the simple meaning, we can say that the hydrocarbons, okay, the compounds of carbon and hydrogen are studied under the organic compounds. ठीक है, आप उनको क्या कह देते हो? Organic compounds कह देते हो. Okay, and their derivatives. Understood? And the study of these compounds is called organic chemistry. Okay, but students, not all carbon compounds or they are included in organic compounds. Few are carbon dioxide, oxides of carbon, or their carbonates, hydrogen carbonates, okay, hydrogen carbonates or cyanides, that are all are included in inorganic compounds. ठीक है, ये organic नहीं है, hydrogen carbonates and cyanides, okay, etc. These are not included in organic compounds. Understood? Carbon oxides of carbon, carbonates, hydrogen carbonates, cyanides. ठीक है, सिर्फ आप तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हो? कैटेगराइज कर सकते हो कार्बन कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स. सो स्टूडेंट्स, ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज सैचुरेटेड, ओके, सैचुरेटेड, एंड वन इज अनसैचुरेटेड. ओके, दे आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. अब सैचुरेटेड कौन से आते हैं? एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो सकता है. ओके, सो दोज कंपाउंड्स दैट आर हैविंग सिंगल बॉन्ड, ओके, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स, ठीक है, जिनके कार्बन एटम्स के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, दैट आर कॉल्ड सैचुरेटेड. ओके, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड. सो हम बाकी की 3 वैलेंसीज भी शो करेंगे ना, तो हम 3 लाइंस, ये 3 बॉन्ड्स, ओके, दिस कार्बन 1 बॉन्ड इसके साथ है, 1 2 3, ये हाइड्रोजन के साथ हो सकते हैं. ठीक है, मेनली हाइड्रोजन ही होता है ना, हाइड्रोकार्बन ही तो कर रहे हैं. अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स और दोज कंपाउंड्स, ठीक है, दैट आर हैविंग, जिनके बीच में क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. 2 कार्बन एटम्स के बीच में, 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या है? डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, दैट आर इंक्लूडेड अंडर अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. तो आप क्या करोगे यहाँ पे? डबल बॉन्ड. ओके, सो 2 बॉन्ड्स आर लेफ्ट, वो आपने ऐसे शो कर दिए. अब आप 3 भी बना सकते हैं इस तरह से. सो 1 1 इज लेफ्ट, वो आप ऐसे शो कर सकते हो. ओके, सो ये कोवलेंट बॉन्डिंग ही है. ओके, तो सैचुरेटेड कौन है? जिनके कार्बन 2 कार्बन एटम्स के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है. ओके, दैट ऑल आर हैविंग, जितनी लंबी चेन हो कार्बन की, उन सब में सब क्या है? सिंगल बॉन्डेड है. अनसैचुरेटेड, जितनी मर्जी लंबी चेन है, पर एक भी कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज अनसैचुरेटेड. ओके, नाउ सी, हम जर्नल इनको क्या कह देते हैं? द कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, उनको आप जर्नली कह देते हो एल्केन्स. ओके, जर्नली द नेम गिवन टू दैम इज एल्केन्स. ओके, और जो डबल बॉन्डेड है उनको आप क्या कह देते हो? एल्कीन्स. मेनली वी आर टॉकिंग बिटवीन कार्बन कार्बन, ओके, दैट आर कॉल्ड एल्कीन्स. और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट आर कॉल्ड एल्काइंस. अंडरस्टूड? सो वी आर हैविंग 3 कैटेगरीज. मेनली सैचुरेटेड के अंडर कौन है? एल्केन्स. अनसैचुरेटेड के अंडर कौन है? एल्कीन्स एंड एल्काइंस. So students, we can draw the structures of various alkanes, alkenes and alkynes. ठीक है, बिफोर दैट आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है, सी केयरफुली. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, किसी में कितने कार्बन हैं, कोई किसी भी कंपाउंड में, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसको नेम देते हैं.
उसको हम कहते हैं वर्ड रूट। वैसे तो हमने देखो नेमिंग नहीं करनी है, ओके, दैट इज वर्ड रूट। आप इजीली समझ सकते हैं, अगर किसी कंपाउंड में 1 कार्बन है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर बेसिस होता है ये, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन एनी कंपाउंड, ओके। अगर किसी में नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसके लिए हम वर्ड रूट लिखते हैं मैथ। क्या लिखते हैं? मैथ। अगर 2 है तो हम लिखते हैं एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, ओके, 9 नन, 10 डेक। अंडरस्टूड? सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम उनका नाम कैसे लिखते हैं? हम उनको एक वर्ड रूट दे देते हैं, पहचान दे देते हैं, ठीक है। दैट इज 1 कार्बन हो तो मैथ, 2 हो एथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन, 10 डेक। हमारे काम के 4 5 तक काफ़ी होते हैं, ठीक है। सो अब देखते हैं, अब हम करते हैं इनके ड्रॉ, ओके, स्ट्रक्चर्स एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस के, ठीक है। उससे पहले आपको एक चीज़ बताते हैं, देयर जर्नल फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, कंपाउंड्स को एक जर्नल फॉर्मूला दे दिया हुआ है कि एल्केन्स का जर्नल फॉर्मूला क्या है। आपको बताते हैं ये कैसे आता है। जर्नल फॉर्मूला इज CnH2n+2, क्योंकि आप कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हो ना, ठीक है। सो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। हेयर n रेफर्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये हमेशा याद रखना, n किसको रेफर कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओके। एल्कीन्स में क्या है? ये 2 हटा दो, ये 2 हटा दो, ये क्या रह गया? CnH2n। दिस इज जर्नल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स। एल्काइंस में 2 हाइड्रोजन हमें और कम करने हैं, देन इट इज CnH2n-2, ठीक है। दिस इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर एल्काइंस, ठीक है। अगर आपको जैसे जल्दी में कोई बोल दे ना कि आप 4 कार्बन कंपाउंड का एल्कीन्स लिखो, देन वी विल यूज सच काइंड ऑफ जर्नल फॉर्मूलाज, ठीक है। अब ये बने कैसे हैं वो भी हम देख लेते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना है। हम क्या करते हैं यहाँ पर, जब हम नेमिंग करते हैं हम इनके पीछे सुफिक्स लगा देते हैं। जो एल्केन्स होते हैं उनके पीछे हम सुफिक्स लगाते हैं एन। सुफिक्स मतलब जो मेन नेम के पीछे आता है। जैसे आप पंजाबी में पढ़ते हो ना अगेतर, पिछेतर, पिछेतर, है ना। हिंदी में पढ़ते हो उपसर्ग, प्रत्यय, तो वैसे ही इंग्लिश में क्या होते हैं? प्रेफिक्स और सुफिक्स होते हैं। प्रेफिक्स पहले लगता है, सुफिक्स बाद में लगता है। तो इसका सुफिक्स, एल्केन का सुफिक्स क्या है? एन। क्या लगता है? एन, ओके। एल्कीन्स का क्या है? ईन, ओके, इनका क्या है? ईन। एल्काइंस का क्या है? आइन, YNE, ओके। मेन वर्ड रूट हमने कर लिया, वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। अब बॉन्ड कैसा है? सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगा दोगे पीछे, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो आप इन लगा दोगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा दोगे। अब हम ट्राई करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एल्केन, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 1, आपने यहाँ C1 फिल कर दिया, ठीक है, क्या बन गया? 1। नाउ 2 1s are 2, 2 + 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 4। ऑब्वियसली 1 कार्बन है तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 4। 1 2 3 4, ठीक है। क्या बन गया? CH4। क्या बन गया ये? CH4। एक कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन, देन इट इज CH4। तो अभी हमने वर्ड रूट लिखा था ना, ठीक है, याद करो उसको। फर्स्ट कार्बन वाले को हमने क्या वर्ड रूट दिया था कि एक कार्बन हो तो क्या होता है? मैथ, ठीक है। तो आपने लिख दिया मैथ, ओके। अब
सिंगल बॉन्डेड है, सो क्या आएगा, एन। तो क्या नाम बन गया इसका, वेरी इजी, मीथेन, है ना, कितना इजी है। अब 2 कार्बन का लिखें, ओके, 2 कार्बन, इफ इट इज हैविंग 2 कार्बन, C2, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ओके। 2 2s 4, 4 2 6, है ना, 4 + 2 6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लो आप, ये ऐसे ही यहीं से लिया गया है, 1 कार्बन, ये कार्बन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, बाकी रेस्ट ऑफ आप हाइड्रोजन के साथ फिल कर देंगे ना। और आपने हमेशा चेक करना है कि 4 वैलेंसेस कार्बन की फिल हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमेशा चेक करना है, ठीक है। 4 बॉन्ड्स बनने चाहिए। नाउ फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप अगर आप इसको कम्प्लेक्स लिखना चाहो, कंबाइंड लिखना चाहो, वैसे तो ओपन करके लिखो तो हमेशा ठीक रहता है। अगर आप इसको कम्प्लेक्स लिखना चाहते हो कंबाइंड करके, C2, आपके पास कार्बन 2 हैं, H 1 2 3 4 5 6, C2H6, ठीक है। तो नेम क्या बनेगा, अभी आपने पढ़ा ना, वर्ड रूट, 2 कार्बन्स हैं तो क्या आएगा, एथ, ओके। और एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, एन, सो इट विल बी इथेन, ओके। इन द सेम वे यू कैन राइट प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ठीक है। एक और लिख देते हैं, एंड नेक्स्ट रेस्ट वन इज योर होमवर्क, ओके। सो यू विल ट्राई। अब 3 कार्बन का देखते हैं, C3 और H कितने हो गए, 3 2 6, 6 + 2 8, 1 2 3 कार्बन हो गए। इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स, दिस वन एंड द हाइड्रोजन्स, ठीक है। मिडल कार्बन 2 बॉन्ड्स इसके बन रहे हैं, 1 2 हो गए, टोटल 4 फॉर दिस कार्बन, 1 2 3 एंड 4 हो गए। अब क्या बनेगा, ये 1 2 3, C3H 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ से भी हमारा यही आया था ना, नाउ इट इज ओके, C3H8। सो कितना हो गया, प्रॉप, क्या है, प्रॉप, और पीछे क्या लग जाएगा, एन, तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेन। इट्स वेरी इजी, ओके। एंड रेस्ट अप टू 5 कार्बन, ठीक है, 3 तक हमने लिख लिया है, 3 वी हैव रिटन, 4 and 5 यू विल डू, ओके, दैट्स योर होमवर्क। नाउ वी विल राइट फॉर एल्कीन्स। अब एल्कीन्स के लिए देखते हैं। नाउ थिंक स्टूडेंट, क्या एल्कीन में 1 कार्बन हो सकता है, क्योंकि एल्कीन तो वो हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। सो मिनिमम हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द डबल बॉन्ड, कितने चाहिए, 2 कार्बन एटम्स चाहिए, है ना, 2 कार्बन तो चाहिए ना, ठीक है। तो यहां पर 1 कार्बन वाला कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। इन एल्कीन्स 1 कार्बन कंपाउंड जिसमें 1 कार्बन एटम हो, ऐसा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है इन एल्कीन एज वेल एज एल्काइंस, बिकॉज मिनिमम 2 एटम्स ऑफ कार्बन आर रिक्वायर्ड टू मेक डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। अंडरस्टूड, ठीक है। सो इसका मतलब यहां से हम कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 कार्बन से। सो कार्बन इज 2, हाइड्रोजन 2 2 4, क्या बन गया, ठीक है, कार्बन आपके 2 हैं। सो लेट्स राइट 1, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब 2 बॉन्ड्स हैं, वो कौन फिल्ड करेगा, हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे मर्जी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरफ को लगा दो, इस तरफ लगा दो ना। हम ये ऐसे लिखते क्यों हैं, हर एक डायरेक्शन में इसलिए डाल देते हैं ना, ताकि सिमेट्रिकल लगता है ना, और हमें काउंट करना भी इजी रहता है। सो इधर देखो, डन हो गया, 2 कार्बन 1 2 और 2 बॉन्ड्स इसके ये हैं, तो कार्बन के 4 हो गए, फॉर दिस कार्बन 2 और 2 ये 4 हो गए। अंडरस्टूड। अब नेम क्या बनेगा इसका, अगर हम नेम लिखना चाहें, 2 कार्बन्स हैं तो एथ, ओके, डबल बॉन्ड है तो ई, क्या बन गया, इथेन, ओके। अब 3 वाला भी आप लिख सकते हैं, 1 2 3, ओके, डबल बॉन्ड, 1 कार्बन, ये 1 कार्बन है तो इसका 1 बॉन्ड ये रहा, 1 2 3,
ये हो गया. नाउ फॉर दिस कार्बन, हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 2 बॉन्ड्स इसके इस तरफ है, 1 इस तरफ है, तो एक ही हाइड्रोजन आएगा. 2 3 4. ओके. फॉर दिस कार्बन 2 बॉन्ड्स इसके इधर बन रहे हैं और 2 इसके हाइड्रोजन के साथ आएंगे. नाउ द नेम इज 1 2 3. 3 prop और डबल बॉन्ड है तो इन. एंड रेस्ट इज योर होमवर्क. ओके. लेट्स राइट एल्काइंस. आप यहाँ पे इनका लिख सकते हो. C2H 1 2 3 4 आया था ना. C2H4. यहाँ पे कितना है? C3H. कितना आएगा? 3 2 6. 1 2 3 4 5 6. C3H6. अब आप इधर चेक कर सकते हैं. यहाँ पर C2H6 था, यहाँ पे C2H4 है. तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन कम हो गए. क्यों? क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड, ये देखो यहाँ पे जो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज हो रहा था, वो इन्होंने कहाँ यूज कर लिया? कार्बन कार्बन के बीच में यूज कर लिया. सो इसलिए 2 हाइड्रोजन और कम हो गए. सो अब आप देखोगे एल्काइंस में 2 और कम हो जाते हैं एज दे आर फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड. सो यहाँ पे भी आप 2 मिनिमम तो चाहिए ही है. 2 1 2 3. ठीक है. कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स वाई दे आर एल्काइंस. अब देखो एक एक ही रह जाता है, सो दैट इज हाइड्रोजन. क्या बन गया? C2H4. सॉरी C2H2. देखो C2H4 था, ये C2H2. क्योंकि यहाँ पर एक एक और इलेक्ट्रॉन इन्होंने फ्री कर लिया और उससे क्या बना लिया? इन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया. तो सिर्फ एक ही फ्री. चलो आप ऐसे बोल सकते हो कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज कर लिए ट्रिपल बॉन्ड बनाने में, तो ओनली 1 इज लेफ्ट, दैट्स वाई ओनली 1 हाइड्रोजन. सो ये क्या बन गया? C2H2. इसीलिए अपने जर्नल फॉर्मूला में -2 कर दिया. 2 हाइड्रोजन और कम हो गए. ओके. सो नेम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन्स तो इथ. आइन पीछे क्या लग जाएगा? आइन. तो दिस इज इथाइन. ओके. एंड 3 1 2 3 कहीं भी लगा दो ट्रिपल बॉन्ड. अब 3 तो इसके हैं ही हैं, तो 1 हाइड्रोजन इधर. नाउ फॉर दिस कार्बन काउंट 3 1 4. तो मीन्स यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा. नाउ हियर 1 2 3. कितने हो गए टोटल? C3H 1 2 3 4. C3H4. यहाँ से 2 हाइड्रोजन और कम. नेम क्या हो जाएगा? प्रॉप और पीछे आइन. एंड रेस्ट टू आर योर होमवर्क. ओके. सो इस तरह से हम एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस लिख सकते हैं. एल्केन्स, these are saturated and these 2 are included under unsaturated. ठीक है. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं स्टूडेंट्स, दे आर जनरली स्टेबल, वो स्टेबल होते हैं एंड दे आर अनरिएक्टिव या आप कह सकते हो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं. एंड दीज आर मोर रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एल्केन्स. एल्कीन्स एंड एल्काइंस, दे आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ एल्केन्स. अंडरस्टूड? आप इधर भी ये पॉइंट लिख सकते हैं. दिस इज मोर रिएक्टिव. ओके. ओ सॉरी, these are less reactive and these are more reactive. Okay, unsaturated are more reactive. Understood? And more about these saturated and unsaturated, that is in their chemical properties. Okay. So students, जैसे आपने इनके ये simple structures लिखे, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स लिखे हैं ना, कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है. यू कैन ऑल्सो शो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. आप इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीथेन तो हमने किया हुआ है. ठीक है, मीथेन वी हैव डन. इथेन करके देखें. लेट्स ट्राई विद द इथेन. इथेन में 2 कार्बन है. ठीक है, और हर एक कार्बन का देखो बॉन्डिंग से ही आपको पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन. ओके. एंड 2 कार्बन्स आर देयर, तो दोनों के अपना 1 तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है विद ईच अदर एंड 1 इलेक्ट्रॉन दे हैव शेयर्ड विद द हाइड्रोजन. नाउ व्हाट द हाइड्रोजन हैज डन, इट इज हैविंग आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन इज देयर, सो इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन. ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सो वी विल पुट हियर क्रॉस. हम इसको क्रॉस की फॉर्म में शो कर देंगे. दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. ओके. सो
इस तरह से। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? टू शो देयर ऑर्बिट्स। अब इस हाइड्रोजन का ऑर्बिट कैसे कंप्लीट होएगा? बाय टेकिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स फॉर दिस हाइड्रोजन, दिस वन, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे हैव शेयर्ड, दिस वन, ठीक है। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इन कंपाउंड्स के भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर दिस कार्बन, नाउ लुक एट हियर केयरफुली, फॉर दिस कार्बन दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर, है ना, ये भी इसने यूज किया है ना फॉर द शेयरिंग की, शेयरिंग में बॉन्ड तो यही बन रहा है। सो ये 2 ये 4 5 6 7 8 हो गए 8। ओके, नाउ फॉर दिस कार्बन, अब आपने इस कार्बन की यहाँ पे शो करना है ना, ऐसे तो ये हुआ ही नहीं। सो आप इस कार्बन की भी शो करोगे 2 4 6 8, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन ड्रॉ दिस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथेन। ये आपने इथेन का बना दिया। ओके, इसी तरह से आप एल्कीन और एल्काइंस का भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एल्कीन का करेंगे, सो इथीन का करेंगे अगर, सो 2 carbons are there and they are using 2 electrons, आपस में वो शेयर कर रहे हैं, and 1 इलेक्ट्रॉन they are sharing with hydrogen, okay, and hydrogen is sharing 1 इलेक्ट्रॉन, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर रहा है to complete its duplet, okay। so ये हो गया this hydrogen, this one for this and this one। अब कार्बन का कैसे होएगा? कार्बन 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 सब आपने ले लिए, ठीक है। नाउ फॉर दिस कार्बन, ये सब आ गए। ओके, सो इस तरह से ये आपने किसका बना दिया? इथीन। इन द सेम वे अगर आप बड़ी कार्बन चेन्स का भी ड्रॉ करना चाहें वो भी कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। ओके, चलो प्रोपाइन का बनाते हैं। प्रोपाइन हमने अभी बनाया ना, C3H4। ओके, प्रोपाइन। अब आपको कोई बोले प्रोपाइन, प्रोप आइन, देखो नेम से पता चल जाएगा। प्रोप मीन्स 3 कार्बन, इट इज हैविंग 3 कार्बन। ओके, आइन, आइन मीन्स इट इज हैविंग ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। सो हमने ट्रिपल बॉन्ड बनाना है, तो मतलब इट हैज शेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इस कार्बन का फिर एक बॉन्ड इधर है इस कार्बन के साथ, ठीक है। इस कार्बन के 3 तो ये हो गए, तो एक ही रहा ना इधर, दैट इज हेयर 3 and 4, और 3 इसने शेयर कर लिए, सो 1 इज लेफ्ट ओनली एंड दैट इट हैज शेयर्ड विद हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के 3 और 4 पूरे हो गए, सो इसको नहीं चाहिए। दिस कार्बन एक ये हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। अब बाकी के इसके हाइड्रोजन के साथ हैं। अब साथ के साथ ना जो सिंपल हमने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं दैट यू विल सी, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। दिस इज फॉर दिस हाइड्रोजन, दिस वन एंड दिस इज फॉर दिस हाइड्रोजन। अब कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे आ गए, ये कार्बन अपना कंप्लीट हो गया। दिस कार्बन 6 7 8, सो दिस वन। फॉर दिस कार्बन 2 2 4 5 6 7 8, सो ये सब आ गए, तो ये हो गया। ओके, सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ देयर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आल्सो। सो यू कैन ट्राई, आप उतनों के ही ड्रॉ करेंगे जितने आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, अप टू 5 of all alkanes, alkenes and alkynes. Okay, so revise this topic properly and this is sufficient for today's lecture. Next we will do in next session. Okay, take care, bye bye.